Hello friends, good morning, good afternoon and good evening to everyone. So in previous lecture, we have discussed about the master data and we have create master data as a class. After that, we have create characteristic, we have create work center, we have create function location and equipment. So remaining remaining master data we will create in create today lecture. Okay, and today session. Okay, so now I'm going to create first one equipment and after that I will assign then I will create a measuring point measurement document and permit for the particular equipment. Now I'm going to my SAP server. I'm considering as a equipment. So I'm going to create equipment or equipment IE01, press enter. I will copy in previous equipment. Okay, IE02 phrase. So this is our previous detail. So now I will copy. So I will show you how we can copy equipment. Okay, so I will use T code IE01. Here I will use previous equipment and I will execute it and all the data will copy. Okay, now I will check as a electric motor or electric motor or compressor. Okay, compressor. Okay, so suppose compressor or what we can create DG set. Okay, diesel generation, diesel gen set, diesel gen set. Okay, and then save it. Now I have created this equipment very easily, 1001696. Okay, so now I'm going to display this equipment in change mode. Okay, and then press enter. So here is the tab name is a go to, and go to we can go through the permit. Okay, so here whatever the permit we can create or we will create, we can assign here. Okay, here we can assign permit. So now I'm going to explain about the permit first. I'm going to take next window, and the T code will be IPMD to create permit and press enter. Okay, here you can see different type of permit are given. Okay, so we can select existing one or we can create new one. Now I'm going to show you how we can create new one. If you want to click if you want to create new one, then create new entry and add safety permit, safety SEFETY safety permit. Then permit category I will select from here, and permit category is not created as a yes, then I can create from here. I will create one permit category. I will create yes SAFETY safety permit and then save, and I will go for back, go back, go back, go again, disconnect this one. Now you can show safety permit category is coming here and showing here. I will select. After that I will use order release, so for which I will select permit must be issue else error. Okay, जब जब कभी भी आप मेंटेनेंस ऑर्डर बनाएंगे और ऑर्डर रिलीज करेंगे तो आपको एरर देगा, एंड ऑर्डर कंप्लीटेशन मस्ट बी इशू एल्स एरर, then I will save it. So this is how I have create one permit. I will go back and save it.
and I will click on Google. So you can see here, I have created one safety permit, this one, and now I am going to assign this permit. So if basically permit is applicable for equipment, okay. So for this equipment, I will assign IE02. So I will go through the change mode, change equipment change mode, IE02, and then press enter, and then press enter. So it is already locked, okay. So I will come here and again I will go through the go to tab, and here permit I will select F safety. This is my permit which I have created, and then press it and then continue. So this is how we have assigned permit with one equipment. This is the permit, okay. And then I will save it. And suppose this is the diesel genset and it is providing us current, okay. So suppose that it is running day to day activity and it is running whole day in means from means for 30 days, okay. And we want to calculate current, कि how much current it is producing per day, okay. So in this case, जब मतलब सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक इक्विपमेंट है, ये एक डीजल जनरेटर है और ये हमको करंट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं आप सपोज दैट कि एक आज का जो डेट है वो 7 दिसंबर है, तो 7 दिसंबर को ये जो करंट प्रोवाइड कर रहा है वो आज मान लो 10 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है, नेक्स्ट डे कितना एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है, इसका कितना कंजम्पशन है या तो ये अगर हमको सपोज दैट कि अगर हमको सिस्टम में मेजर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं वो चीज दिखाता हूँ। उसके लिए ही हम क्रिएट करेंगे measuring point. IK01 is the T code to create measuring point. And for this, for which equipment I am going to create, I will select. And measuring point object I will take as a equipment, and I will put equipment number and then measuring point category M, and then click on measuring point counter, then press enter. अब suppose I will take measurement position as a current. After that, current in ampere, MP. Here I will select current, current, okay. And you can see current in ampere, character unit is ampere, and annual estimated, suppose that it is providing current 1000 or 10,000 we can consider, okay. मतलब कि पूरे वर्ष में कितना इसको करंट प्रोवाइड करना है, अगर पर डे इसको 10 घंटे 10 एम्पियर प्रोवाइड करना है तो पूरे साल के 365 हो जाएंगे, ठीक है। 365 प्रेस इंटर कर देंगे और काउंटर ओवर रीडिंग इस केस में नहीं होगा, ठीक है। काउंटर रीडिंग हम एज इट इज छोड़ देंगे और देन सेव इट कर देंगे। तो इस तरह से वी हैव क्रिएट वन मेजरिंग पॉइंट, एंड मैं हम लोग ने जो भी मेजरिंग पॉइंट क्रिएट किया वो इस इक्विपमेंट के लिए, पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, डीजल जेनसेट के लिए। सो फॉर द पर्टिकुलर इक्विपमेंट आई एम गोइंग टू क्रिएट मेजरमेंट डॉक्यूमेंट। सो अगर मैं मेजरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए टी कोड है IK11, देन प्रेस एंटर, और दिस इज द मेजरिंग पॉइंट फॉर विच वी आर गोइंग टू क्रिएट मेजरमेंट डॉक्यूमेंट। सो मेजरमेंट डॉक्यूमेंट सपोज दैट कि 1 दिसंबर को उसने कितना करंट प्रोवाइड किया, 1 सेकेंड, ओके। 1 तारीख को सुबह में हम इसको रीडिंग मेजर करने जा रहे हैं। सो 1 दिसंबर को इसने कितना प्रोवाइड किया, सपोज 10 एम्पियर, प्रेस इंटर कर दूंगा। पर डे फर्स्ट डे का 10 एम्पियर उसने प्रोवाइड किया, सेव इट। सेकेंड को कितना उसने प्रोवाइड किया, तो सेकेंड का डेट हम देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ मेजरिंग पॉइंट रहेगा जिसके लिए हम मेजरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, एंड वी विल कंसीडर मेजरमेंट टाइम, मतलब मैं 2 दिसंबर को कंसीडर कर रहा हूँ सुबह के 8 बजे, देन प्रेस इंटर। तो 8 बजे का टाइम डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अब सपोज दैट कि उसने क्या किया, सेकेंड डे क्या कितना क्रिएट किया, सेकेंड डे इसने कितना करंट प्रोवाइड किया, मतलब ओके या प्रोड्यूस किया। सो हम 12 एम्पियर, देन प्रेस इंटर एंड देन सेव इट। अगेन मैं थर्ड को मेजर करने जा रहा हूं, थर्ड को सुबह के 8 बजे, देन प्रेस इंटर। सो नेक्स्ट जो भी रीडिंग आएगी ना, वो डिफरेंस में केवल आपको ऐड करते जाना है, जिससे कि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। अगेन थर्ड को भी 11 एम्पियर इसने प्रोड्यूस किया, देन सेव इट। अगेन फोर्थ को कितना प्रोवाइड किया होगा, ओ सॉरी, ये टाइम 8 बजे का ही लेंगे हम, ठीक है। और हम ये जो रीडिंग है वो सपोज 10 एम्पियर फिर से इसने लिया, देन प्रेस इंटर, तो ये सेव कर देंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ को कितना करंट प्रोवाइड किया, सुबह के 8 बजे तक, क्योंकि 12 घंटे का 24 घंटे की वर्किंग होता है ना, तो 12 घंटे डे और 12 घंटे नाइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह का 8 बजे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस, अभी 5 तारीख को कितना करंट प्रोवाइड किया है उसने, मान लीजिए सपोज दैट 12 एम्पियर प्रोड्यूस किया है, या 13 एम्पियर, कुछ भी आप ले सकते हैं, देन सेव इट। अगेन आई विल गो फॉर द 6 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक कितना करंट प्रोड्यूस किया है, तो ये उस तारीख को हम सपोज दैट उस दिन 13, उस दिन ज्यादा काम करा, ठीक है, एंड सेव इट। सेवेंथ को कितना प्रोड्यूस करे, ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 10 एम्पियर एंड देन सेव। तो हमने तो मेजरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट, देखिए मेजरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, हमने आज करंट डेट के लिए भी मेजरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। अब हम कैसे डिस्प्ले करेंगे कि एक मेजरमेंट डॉक्यूमेंट कहाँ होता है, तो डी टी कोड इज IK72 डिस्प्ले मेजरमेंट डॉक्यूमेंट, ये डिस्प्ले मेजरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो सकता है। तो यहाँ 114 नंबर की मेजरिंग पॉइंट हम डालेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो स्क्रीन विल बी अपीयर। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 तारीख को इसने क्या प्रोड्यूस किया, 1 तारीख को 10 एम्पियर, 2 तारीख को इसका डिफरेंस होगा, तो अगर आप इस पर क्लिक करिएगा ना मेजरमेंट डॉक्यूमेंट में, और ये डिफरेंस यहाँ देखिएगा, तो ये 12 होगा, मतलब 2 तारीख को 12 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया। 13 को क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो 13 को 11 एम्पियर, जो उसका डिफरेंस है यही इसका कैलकुलेटेड वैल्यू। So this is how what we have created. We have create one equipment again, and after that we have create one measuring point for particular equipment. After that we have create a measurement document, and we have created maintenance permit for particular equipment. Now I am coming on list. So these things we have created. Okay. Now what is part? Suppose that sometime we are working with some small equipment or some small tools. In this case we can create part as a equipment, so we will use T code IE01, press enter, and from here we can classify it category as a P. ओके, इक्विपमेंट कैटेगरी हम पी ले लेंगे, तो प्रोडक्शन रिसोर्स टूल आ जाता है। मैंने इस पे प्रेस इंटर करके प्रेस इंटर कर दिया, और मैं इसको ले रहा हूँ ड्रिल मशीन, मीन्स हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल machine, and then press enter. Location I will take as a 1710 plant and press enter. Organization detail will also come, structure no need to define on structure, and ये part का use क्या है, then I will select from here. Use for only maintenance task list. Grouping key we will select from here, drill के लिए, grouping to drill. Okay, control key PM01. Standard text we will select from here, cutting. Okay, stand usage value formula we will take as a quantity or usage value. Okay, and then save it. So PM01, okay, current control key we will select from here, all function. Okay, all function, and then save it. So this is how we have create one equipment as a part. Okay, now I am going to create task list and measurement maintenance strategy. So what is the task list? So the T code will be for general task list. There are three different type of task list.
One is a general task list, second is a equipment task list, and third is a function location task list. So now I am going to create task list as a general task list. I will use T code IA05 and then press enter. Screen will be appear in front of us. Then मैं प्रेस इंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा टास्क लिस्ट फॉर ओके टास्क लिस्ट फॉर डीजी सेट। ओके, मैं डीजी सेट के लिए जनरल टास्क लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, डीजल जेन सेट के लिए जेन सेट। ओके, planning plant I will take as a 1710. After that work center I will take MECHWRK plant 1710. यूसेज हमेशा देखिए 004 होगा, सॉरी 4 होगा प्लांट मेंटेनेंस। ओके, एंड आफ्टर दैट ओवरऑल स्टेटस वी विल टेक एज ए रिलीज। ओके 4। ओके, आफ्टर दैट प्रेस इंटर, देन क्लिक ऑन ऑपरेशन। ऑपरेशन पे क्लिक करके जेनसेट के लिए जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना है, सपोज दैट कि जो कुछ भी, तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है जेनसेट का टास्क लिस्ट ढूंढने में, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं टास्क ऑपरेशन फॉर डीजल जेनसेट। ओके, प्रेस एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड आपको टास्क ऑपरेशन टास्क लिस्ट ऑपरेशन लिस्ट स्टील, तो आपको या इंपॉर्टेंट आ जाएंगे कुछ। तो हम लोग वेबसाइट के थ्रू इसको ढूंढेंगे कि क्या क्या चीजें हमको करना है। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। यहाँ से हम लोग को टास्क लिस्ट मिल जाएगा कि हमको एक, देखिए मेंटेनेंस करते समय किसी डीजी में क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो चीजें यहाँ से मिल जाएगा। लवलिकेशन सर्विस, कूलिंग सर्विस। ओके, दे हैव नॉट मेंटेन प्रॉपर टास्क लिस्ट। ओके, so this is the guideline, this common manufacturing instruction. So we will copy. Okay, so we can copy. Disconnect generator, drain fuel and change fuel filter, drain coolant. Okay, this is the task list, and I will copy and I will here paste here. So drain, disconnect generator batteries, drain the fuel system and change fuel filter. Okay, या फिल्टर केवल या सॉरी FILTR filter, drain coolant and change coolant filter, replace all filter, cover all intake exhaust port and connect supply connection. Okay, generator supply connection, जनरेटर सप्लाई कनेक्शन को यहाँ से चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ ऑपरेशन और मीन्स बंडल ऑफ ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, और जो भी आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, वही सेम डिटेल्स वी विल मेंटेन हियर एंड देन सेव इट। So this is how we have create task list as a 3-3. ओके, अगर आपको टास्क लिस्ट डिस्प्ले करके देखना है तो यहाँ से भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं। प्रेस इंटर करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कि हमको इस टास्क लिस्ट में क्या क्या चीजें परफॉर्म करना है। अगर हमको डीजी का मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या क्या करना है, ये हमारी कंपनी का स्ट्रेटजी है। सो ड्यू टू दिस रीजन आई हैव क्रिएट टास्क लिस्ट। ओके, now I'm going to create maintenance strategy. So देखिए, I had explained already to you कि there are 3 different type of plan. First is a single cycle plan, second is a strategy based plan, third is a multiple counter plan. So decode will be creation of maintenance plan IP42. So यहाँ पे आपको दिखेगा कि you can see here there is one field or tab strategy. From here we can select strategy for particular maintenance order. Okay,
सो हम कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो हमको मेंटेनेंस स्ट्रेटजी क्रिएट करना पड़ता है। और मेंटेनेंस स्ट्रेटजी हर जगह यूज नहीं होती, ये टोटली आपके कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। आई विल टेक टी कोड, आई विल यूज टी कोड IP11 and then press enter, and I will click on this one, and here you can see here name I will take 171, okay, STR straight G, okay, uh, S plan I will take, okay, it's strategy plan, strategy plan. Then I will take as a activity because we are going to perform activity. Strategy unit I will take as a हावर्स में करना है तो हावर्स में, और डे में करना है तो डे बेसिस पे। सो मैं आई एम टेकिंग हावर्स, HRS, देन प्रेस इंटर, ओके। HRS is not given, so then HR I will take. After that, call horizon I will take 90, shift factor I will take 10, and again I will take 10, and then press enter, and then I will save it. Then I will go back. So here you can see yes plan, strategy plan I have created, and after that I will select this one and click on package, okay, and now this screen will be appear, ये screen आपके सामने दिखेगा। Then click on new entry, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने कहीं एक्सेल सीट में स्ट्रेटजी मेंटेन करके रखा है या कुछ चीजें अगर मेंटेन किया, देखिए स्ट्रेटजी प्लान कहाँ कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ मैंने यहाँ मेंटेन किया आपके लिए, ओके। तो अगर आपने मेंटेन किया है तो ठीक, नहीं किया है तो मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम लोग जो भी होता है हम ऐसे ही करते हैं, ओके। सो मैं क्या करूंगा कि मेंटेनेंस टास्क लिस्ट, मेंटेनेंस स्ट्रेटजी पे आ जाऊंगा, और जो डीजी का सर्विस होता है वो ऐसे होता है, वही सेम मैं पैकेज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, ये सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक, एंड देन प्रेस इंटर। तो स्ट्रेटजी हम क्यों क्या करते हैं, सपोज दैट कि हमको डीजी का जो डीजी का मेंटेनेंस करना है, तो पहला जो डीजल जनरेटर सेट का अगर हमको मेंटेनेंस करना है, तो पहला जो डीजल जनरेटर का मेंटेनेंस प्लान होगा वो 550 घंटे पे क्रिएट होगा, दूसरा 100 घंटे पे होगा, फिर 200 घंटे पे, फिर 250 आवर्स पे, फिर 500 आवर्स पे, 1000 आवर्स में। इसमें इंटरवल फिक्स नहीं रहता, स्ट्रेटजी में इंटरवल फिक्स नहीं रहता, इसीलिए हम ये प्लान क्रिएट करके रखते हैं। देन सेव, और देन सेव करके हम पैकेज पे जाके देखेंगे तो ये पैकेज भी दिखेगा कि ये प्लान कब कब क्रिएट करेगा और कैसे क्रिएट करेगा। सो दिस इज द मेन थिंग्स विच आई हैड एक्सप्लेन हियर, ओके, विच आई हैव एक्सप्लेन हियर, एंड देन सेव इट, एंड आई विल गो बैक अगेन। सो ये चीज था आपका मेंटेनेंस स्ट्रेटजी एक, ओके। अगेन आई विल कम ऑन मास्टर डेटा, क्या चीजें अभी बच रही हैं उसके लिए मास्टर डेटा क्या क्या क्रिएट करना है। सो मास्टर डेटा में हमने ये टास्क लिस्ट और मेंटेनेंस स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, देखिए कैटलॉग में हम ये सारी चीजों को मेंटेन करते हैं कि एक डीजी किस रीजन से कैसे ब्रेक डाउन हुआ है। सपोज दैट मेरे पास एक एक्सेल शीट है कैटलॉग प्रोफाइल का, तो ये क्या है, एक मेरे पास ये डीजल जनरेटर के लिए, फॉर डीजी के लिए मेरे पास एक टास्क लिस्ट मैंने मेंटेन किया। सो डीजी डीजी में क्या ऑब्जेक्ट पार्ट होते हैं, डीजी में इंजन होता है, अल्टरनेटर होता है, डीजल टैंक होता है, डीजल पंप होता है, टर्बो होता है, एग्जॉस्ट पाइप होता है, रेडिएटर होता है, और कंट्रोल पैनल होता है। लेकिन अगर इसमें डैमेज होगा तो क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या टास्क आप परफॉर्म करेंगे और क्या क्या आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं कि जब कभी भी हम नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें ये दिखेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट टास्क लिस्ट। तो टी कोड विल बी QS41, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कैटलॉग जो भी है, कैटलॉग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ए लेंगे, और यहाँ कोड ग्रुप में हम स्टार लेंगे, एंड देन प्रेस इंटर करेंगे। तो जो एक्टिविटी होगा, सपोज मैं ये एक्टिविटी करने जा रहा हूँ,
तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और ये कॉपी करके मैं यहाँ डीजल जनरेटर का एक्टिविटी देखिए आपको ऑलरेडी मेंटेन है। सो इस पे कोड ग्रुप पे आइएगा तो आपको दिखेगा कि क्या क्या रिप्लेस करना। देख रहे हैं ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, बी रिंग रिप्लेस, गैसकेट रिप्लेस, कूल कपलिंग रिप्लेस, ओ रिंग रिप्लेस, ये सारे ऑपरेशन ऑलरेडी यहाँ मेंटेन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं खुद का मैं क्रिएट करूं तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं डालूंगा डी जी डैश सेट, सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यस ओके। मैं इस न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, मैं डी जी एस सी टी सेट, डी जी या डीजल सेट, डीजल डीजल जेन सेट, ये स्टेटस ऑफ कोड ग्रुप मैं रिलीज ले लूंगा और मैं प्रेस इंटर करके इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। मैं अब फिर से उसको जाऊंगा, इंटर करूंगा और मैं इस वाले के लिए मैं एक्टिविटी मेंटेन करने जा रहा हूं। तो यहां से कोड पे क्लिक करके न्यू एंट्री पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस बेरिंग, शाफ्ट, ऑयल सील, ओ रिंग, फिल्टर, कपलिंग और प्रेस इंटर कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम एक्टिविटी करते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट का, बी ऑब्जेक्ट पार्ट। बी ऑब्जेक्ट पार्ट लेके प्रेस इंटर करेंगे तो हमको ये क्या ऑब्जेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो फिर से हमको अगर क्रिएट करना है तो ठीक, नहीं तो हम इसको भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पार्ट इंजन है, अल्टरनेटर है, कंट्रोल पैनल, एग्जॉस्ट है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कोड लिस्ट और कोड ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं जब ऑलरेडी इस सिस्टम में दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा कि बार बार इसको असाइन डिफाइन नहीं करूँगा। देन आई विल गो बैक। ठीक है, अगेन हम सीक लेंगे, सी का मतलब होता है कॉजेज, सी मतलब ओवरव्यू ऑफ डैमेज। ठीक है, आफ्टर दैट प्रेस इंटर। तो यहाँ से आप देखिएगा टीजी के डैमेज के लिए, तो यहाँ आपको यहाँ दिखेगा कि अगर डैमेज पॉसिबल, बियरिंग डैमेज हो गया, गैसकेट, कपलिंग और ओ रिंग, ऑयल सील, फिल्टर, बोल्ट, जो भी डैमेज होगा वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, कौन सा कोड ग्रुप लेते हैं, कोड कैटलॉग लेते हैं टू, मतलब टास्क, क्या हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप आएंगे फिर से और वो डीजी के लिए देखेंगे, यहाँ पे डीजी नहीं है क्या, किसी ने डीजी का डिलीट कर दिया है। ओके, नो इशू, आई विल क्लिक ऑन डीजी, डीजी टी। ठीक है, और मैं यहाँ डीजल जेनसेट टास्क यहाँ रिलीज कर दूंगा मैं और मैं इसको सेव कर दूंगा। मैं इसको सेव कर दिया। अब ये कोड ग्रुप जो भी है, तो मैं कोड ग्रुप अपने डिटेल से जो 2 नंबर होगा मेरा, वो टास्क ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, इंटर कर दूंगा, इंटर करके मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो फिर से 5 नंबर का हम कैट कोड ग्रुप लेंगे। 5 मतलब कॉजेस। एक कैटलॉग प्रोफाइल बनाने के लिए इतना चीज करना पड़ता है, यहाँ भी डीजी का दिया नहीं है। मैं क्या करूंगा, न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, डीजी डैश सी कर दूंगा, कॉजेज, डीजल जेनसेट कॉज, CAUS, कॉज, रिलीज करके मैं प्रेस इंटर कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। कंटिन्यू करूंगा और अपने मास्टर डेटा से मैं जो कॉजेज होंगे ये यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा। अब फिर से मैं यहाँ इंटर करूंगा इसके अंदर और डीजी करके एक होगा मेरा DGC, इस पे कोड ग्रुप में जाऊंगा, सेलेक्ट करके उसको और यहाँ न्यू एंट्री पे क्लिक करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ सेव कर दूंगा। तो मैं क्या हो गया, मैं इसको सेव कर दिया।
उसी तरह मैं क्या करूंगा, बी के लिए भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने बी के लिए किया नहीं था, लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ। बी के लिए और सी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्विपमेंट के थ्रू जाएंगे, IE02 ई कोड के थ्रू चेंज मोड में, और यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर पुट करेंगे, प्रेस इंटर करेंगे, और हम ऑर्गेनाइजेशन टैब में आएंगे तो यहाँ होता है कैटलॉग प्रोफाइल। यहाँ से हम कैटलॉग प्रोफाइल असाइन कर सकते हैं, और जो कैटलॉग प्रोफाइल हमको असाइन करना है वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं इस पे आऊंगा, अगेन मैं फिर से चेक करूंगा अपना QS41 से ए मैं लेके प्रेस इंटर करूंगा, तो मैंने ए के लिए डिफाइन किया है, ठीक। ए के लिए मैंने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बी के लिए मैंने किया है, देखूंगा, नहीं किया है तो मैं करूंगा, ठीक है। न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा मैं, DG-B ऑब्जेक्ट पार्ट, इसको मैं रिलीज कर दूंगा, ये बी ऑब्जेक्ट पार्ट्स होगा, ठीक है। प्रेस इंटर कर, ओके। DG-B करूंगा मैं, और उसके बाद कोड ग्रुप पे आऊंगा, लाइन आइटम सबको सेलेक्ट करके कोड ग्रुप कोड्स पे आऊंगा, देन न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, और अपने एक्सेल सीट से मैं ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ से कॉपी कर दूंगा, मैं प्रेस इंटर करके सेव कर दूंगा, और उसके बाद सेव कर दूंगा। तो मैंने बी के लिए भी कर लिया, ए के लिए भी कर लिया, अब मैं सी के लिए प्रेस इंटर करूंगा, सी टाइप के लिए। तो सी के लिए मैंने यहाँ नहीं किया था, लेकिन मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, और DG-C, DG ओवरव्यू ऑफ डैमेज, BAM डैमेज, रिलीज कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, ओके। और यहाँ से मैं ओवरव्यू ऑफ क्या कर रहा था मैं, ओवरव्यू ऑफ सी के लिए, तो मैं सी के लिए भी यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ओके, मैं बैक कर दूंगा, और DGC के लिए मैं यहाँ पे जाके डैमेज जो कोड जो भी है, न्यू एंट्री पे जाके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि जो कैटलॉग हमने क्रिएट किया उसको कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना पड़ता है, लेकिन मैं उसको बाद में आपको बता दूंगा। तो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव क्रिएटेड कैटलॉग प्रोफाइल, ओके। सो कैटलॉग प्रोफाइल हमने क्रिएट किया। सी के बाद मैं 2 लूंगा और प्रेस इंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को DG का टास्क लिस्ट दिखेगा, ठीक है। और 5 में लेके प्रेस इंटर करूंगा तो ये मेरे को DG का कॉजेस दिखेगा, ओके। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ तो लगता है मिस्टेक हुआ है, यहाँ से न्यू एंट्री पे मैं क्लिक करूंगा, DG-सेट, ओके।
डीजी सेट कैटालॉग प्रोफाइल। उसके बाद मैं प्रेस इंटर कर दूंगा, सेव कर दूंगा, इंटर, बैक। तो डीजी सेट मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैं कोड ग्रुप पे आऊंगा, यहाँ पे न्यू एंट्री क्लिक करूंगा मैं, यहाँ ए बी सी करके 2 और 5 डाल दूंगा, यहाँ स्टार डाल दूंगा। ठीक है, मैं शिफ्ट प्लस स्टार कॉपी करूंगा इसको, पेस्ट 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 पेस्ट, प्रेस इंटर करूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं बैक करूंगा। अब मैं जाऊंगा उस इक्विपमेंट के थ्रू जहां मेरे को कैटलॉग प्रोफाइल असाइन करना है। हमेशा कैटलॉग प्रोफाइल इक्विपमेंट के साथ असाइन हो सकता है, और यहाँ देख सकते हैं आप डीजी सेट करके डीजी सेट कैटलॉग प्रोफाइल आ गया। और जब इसको हम प्रेस इंटर करेंगे तो ये डीजी सेट कैटलॉग प्रोफाइल यहाँ दिखेगा और हम इसको बाद में सेव कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड टास्क लिस्ट एंड maintenance strategy and catalog profile. Okay, so again we will come on and we have completed these things. So this is how we have create all the master data which are required to perform business transaction. So next class में हम business process को transaction करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस प्रोसेस की टेस्टिंग करेंगे, कैसे हाउ वी कैन क्रिएट मेंटेनेंस, सॉरी, हाउ वी कैन क्रिएट करेक्टिव मेंटेनेंस, हाउ वी कैन क्रिएट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, हाउ वी कैन परफॉर्म refurbishment, how we can perform calibration, how we can perform how we can perform preventive maintenance. So वन बाय वन सारे बिजनेस को हम परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मास्टर डेटा सभी कंप्लीट कर लिया है। अब हमको मास्टर डेटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।